detail. To begin our program on a sacred and positive note, let us invoke the blessings of Ma Saraswati, the goddess of wisdom, knowledge, and learning. I kindly invite our dignitaries to the stage to join us for the lamp lighting ceremony, a symbol of enlightenment, progress, and triumph of knowledge over ignorance. We are deeply honored to welcome a chief guest for today, Dr. Vinay Singh, Associate Professor in the Department of Management Studies at ABB IIITM Gwalior. Please give him a huge round of applause. Dr. Singh holds a PhD from IIT Kanpur, an MTech from IIT Kharagpur, and a Bachelor's in Computer Science Engineering. With over 12 years of academic experience, he is a recognized expert in areas such as technology and innovation sustainability, sustainable leadership, and the frontier technologies of Industry 4.0, including blockchain, IoT, AI, and machine learning. He also contributes significantly to the advancement of entrepreneurship 4.0. With us, we also have Dr. Shahid Amin, IIC Conveyor MBA Department, and Dr. Manoj Bandit, HOD of EC Department and IIC President. Please give them a huge round of applause. As a token of our appreciation and respect, we would now like to felicitate our esteemed guest with a memento and a bouquet. Now I request our volunteers to kindly present the bouquet and memento to Dr. Vinay. Thank you, dear guest, for taking the time to be with us and for enriching this occasion with your presence. World Innovation and Creativity Day, a global observance that highlights the role of creativity and innovation as essential tools for solving problems, driving economic growth, and building a sustainable future. I would now like to invite Dr. Shahid Amin for his valuable words on today's theme. You can sit for a while. Well, our worthy guest for today's celebration day related to World Creativity and Innovation Day, Professor Dr. Vinay Singh sir, IIC President Professor Manoj Bandil sir, coordinators for today's event, IIC members, dear students, a very good morning to one and all. Well, it is a pleasure to welcome you all on this special occasion. As it's mentioned, we are celebrating World Creativity and Innovation Day. Well, it is a celebration of human imagination, bold ideas, and the ability to think something differently. Well, let's start with a quick question. When you hear the word creativity, what comes to your mind? Well, students, can anyone, what comes to your mind when you listen, when you hear the word creativity? Anyone? Something new. Okay. Some more inputs? Okay, I'll make it easy. Dolly Chai Wala, right? Dolly Chai Wala. You all remember this name? So he's known for who made a tea brand
and chai time a photo shoot, right? And in fact, there was Bill Gates, right? So he came to India, and then you could find Dolly Chaiwala with Bill Gates. Then recently, you might be watching IPL, right? So that smart dog caught the attention of everyone, right? Okay, so it is clearly chasing innovation. And then we have Ranveer Singh. All of us, right, watched movies. So he is known for, Ranveer Singh is known for dressing sense. Excellent. Yeah, our student warriors. So during the Viva, right? So they all turn into last minute master class experts, storytellers. I mean, these are glimpses of everyday creativity, turning the ordinary into something memorable. Well, dear students, dear friends, creativity is not about being quirky or going viral. According to renowned professor Robert E. Franken, well, creativity is the tendency to generate or recognize ideas, alternatives, or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others, or entertaining ourselves and others. In short, the message here is creativity is a way of thinking. It is a process. It is a process of doing things differently. Well, let me share an example that will give some idea related power of creativity. Well, and the cost of ignoring this creativity. Well, at one point, you all know there have been examples. I mean, this example was said by BlackBerry. Well, BlackBerry ruled the market. They were the go-to device for professionals, and then they were secure, reliable, and widely used. But then, until Apple came along, so Apple didn't just created a phone. What it did, they reimagined this phone, and then what a phone could be. So a device for music, internet, apps, creativity, and much more that Apple can, iPhones and these iPods can do. Well, what I am trying to tell you is here is the rest is history. So creativity backed by courage and innovation changed the entire industry. Well, this brings me to another question. Why do we as humans feel driven to be creative? Well, we seek novelty. There is a tendency with all the humans. You and me are not an exception. So we all, the newness excites us, and then it keeps us engaged. So that is why we all want to be creative. Well, we all want to express ourselves through our ideas, through our values. Then, and who does not want to solve problems? So every day there are so many problems. So it is our responsibility to solve these problems, and then there lies the significance, importance of being creative. Well, but creativity doesn't always flow freely. It gets blocked by rigid systems, fear of failure, poor thinking, or just sticking too closely to the routines. So even our own self-doubt can limit our thinking. So to all our students, the message here is you are the most powerful force for innovation. Your ideas, your curiosity, your courage to challenge the status quo, that all matters. And then start messy, that is the message. Start messy, start small, but start thinking differently. Well, as Jack Welch, he's a renowned former chairman and CEO of General Electric said, we know where most of the creativity, the innovation, the step that drives productivity lies. It lies in the minds of those closest to the work. That means students. So on this World Creativity and Innovation Day, I invite you not just to celebrate creativity, but to live with it. Every time you say there has to be a better way, that means you have taken the first step. On behalf of Institutions Innovation Council, we extend our heartfelt gratitude to our
esteemed guest, Professor Dr. Vinay Singh sir. Sir, thank you for sparing precious time, and we are sure that time and again you will be again coming and sharing your wonderful insights with all of us, especially guide our students. And gratitude goes to our uh, worthy management, our chairperson of IIC ITM, Professor Meenakshi Mazumdar ma'am, for her guidance, for her leadership, our president, Professor Manoj Bandil sir, as well as our dedicated faculty members, enthusiastic students, for their wonderful contributions in making this event a great success. Well, thank you everyone, and let's keep creating, questioning and innovating. Stay blessed everyone. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. I would now like to invite Dr. Manoj Bandil for his words on today's theme. Our respected guest for today's session. Today we are going to celebrate this World Creativity Innovations Day. So on behalf of IIC, I congratulate all of you. So as the name indicates, innovations and creativity. I'm thankful to Dr. Sahin for just enlightening the motto of this event. As we discuss about the innovations, every day, every university, every institutions, our government is focusing on innovation, startup, and now it becomes the policy of each and everywhere. भी अपने innovations ideas को देखते हैं, तो किसी भी कंपनी की बात करें, innovation कोई ऐसा नहीं होता, it's a very big your target is there. Only thing is that how we are making the things are simple. In anyhow, as far as the operations is concerned, as far as the energy is going to concern, the thing is that how I'm making our life is better. Because if you are going to satisfy with your present scenario, then you will never go for the betterments. So if we are going to make the things are better for the futures, each and every time we are looking for the betterments, each and replacements are there, each and every technology is overlapping. आप यदि अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की बात भी कर लें, अपने लैपटॉप्स की बात भी कर लें, तो लैपटॉप्स भी हर 3 साल के बाद और 4 साल के बाद आउटडेटेड हो जाता है. आप अपने मोबाइल्स की बात कर लीजिए, हर मोबाइल्स अपना एक टाइम एरा लेकर के आता है, उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाता है. दैट मीन्स यदि हम आज की बात, हर जो कंपनीज हैं वो आज की नहीं, आगे से आने वाले 10 ईयर्स के लिए बात करती हैं. आपका आने वाला समय कैसा होगा, कैसे बेटर होगा, यदि हम इस तरह से सोचना चालू करेंगे तो रियली हम अपनी जो सराउंडिंग्स है, जो हमारी दुनिया है, जो हमारी वर्ल्ड है, हमारा वो बेटर ही होगा. दे आर वर्किंग टू क्रिएट अ इकोसिस्टम. दिस इज द रोल ऑफ IIC, Institute Innovation Cells. What is this? We are basically working on how we are going to create an ecosystem in your students. So that's why they are thinking, if we are changing a one person thinking, that our mission is successful. Because it's a matter of your how much you are going to involve. So that's why this World Creativity and Innovation Day, I really congratulate and I'm hopeful that you are thinking in a different manner and making the things easier in near future. Thank you very much. Thank you, sir, for your wise words. I would now like to invite our honorable guest, Dr. Vinay Singh, to give a few words of wisdom regarding today's theme, that is innovation and creativity. Round of applause. Really privileged to be here and honored to be here, to be part of this wonderful day and discussion happening over here right now.
I'm really thankful to the department, to the organizer, to the professors, you people, and whole student team who has organized this wonderful event today. In the line of same, what I was observing when Professor Sain and Professor Manoj was discussing, I was just observing you people. So majority stuff are basically belonging to the local region, then probably the language of Hindi would be more preferred. So I must use the bilingual communication, which will definitely clear the hurdle between you and me, right? So coming to the point that what was the need of the World Creativity and Innovation Day to celebrate all over the world? It was just because of sensitizing the student towards thinking its thinking about its nearby surroundings. मैं अपनी अब जल्दी से जल्दी मैं हिंदी भाषा में आना चाहता हूँ. तो इसकी शुरुआत हम ऐसे कुछ कर लें कि जब फिलॉसफी की ओर थोड़ी सी बढ़ते हैं हम लोग, है ना. होमो सेपियंस जो अब एक मानव जाति का उत्पत्ति हुई, वो कितने साल पहले हुई थी? लगभग कितने साल पहले? लगभग 70,000 साल पहले, ठीक है ना. तो जो 70,000 साल पहले जब आदमी, ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सेपियंस जैसी चीज कहीं न कहीं जंगल की प्रजातियों से उठ करके एक सिविलाइज प्रजाति की ओर बढ़ना शुरू किया, उसमें से एक सबसे पहला उनका अनुभव क्या रहा होगा? सबसे पहला अनुभव यही रहा होगा कि यार ये जो सवेरे देखते सवेरे उजाला हो जाता है, रात में थोड़ी समय बाद कुछ काला काला सा होता, कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको लोगों ने क्या किया? अपनी एक थ्योरी बनाना शुरू किया, है ना. उस थ्योरी को बनाना शुरू किया तो उसको एक को दिन कह दिया, एक को रात कह दिया, है ना. कुछ ऐसा ही रहा होगा, हो सकता है रात और दिन का नाम कुछ अलग रहा हो 70 साल पहले, लेकिन उसको कुछ उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का उपयोग करना शुरू किया होगा, जिससे ये पता चलता होगा कि ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उससे पता चलेगा अंधेरा हो गया चारों तरफ, और ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो इसका पता चले, इसका मतलब ये हुआ कि अब उजाला हो गया. और वो ये परंपरा चलनी शुरू हुई और वो धीरे धीरे अपने बच्चों को बताना शुरू किए होंगे ये रात है और ये दिन है. यही रहा होगा, यही कुछ रहा होगा ना. पीछे लास्ट बेंच, आप लोग से बात करना चाहता हूं मैं. हाँ, आप ही लोग से, है ना. बात समझ में आ रही है? दूसरी स्थिति क्या होती है कि कोई व्यक्ति रात में सोया होगा, सवेरे जगा नहीं होगा. नहीं जगा होगा तो लोग इंतजार किए होंगे, तो उसको हिलाया होगा, या कुछ तो उसके पास इर्द गिर्द घूमे होंगे, पता लगा 3-4 दिन तक नहीं जागा. कुछ समय बाद उसके अगल बगल से कुछ स्मेल से आने लगी, बैड स्मेल, फाउल स्मेल से आने लगी. लोगों को पता चला कि अब ये उठ नहीं सकता, तो शायद वहां से मरने की परिभाषा निकल के आई होगी. ये क्या है? एक इंक्विजिटिवनेस ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स. कैन वी से दिस इज क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड? कैन वी से? अगर ये क्रिएटिविटी है तो ये काम तो जानवरों के साथ भी होता है ना. क्रिएटिविटी यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि मरने को जान लिया, दिन को जान लिया, रात को जान लिया, क्योंकि नेचर का हर एक लिविंग बीइंग्स इस बात को समझता है कि नेचर के साथ ट्यून कैसे होते हैं. और हर व्यक्ति के, हर लिविंग बीइंग्स के जो बॉडी है उसमें एक कैपेबिलिटी है. कैपेबिलिटी क्या है? कि चीज, प्रकृति को अपने साथ ढालना, अडेप्टेशन विद द इन्वायरमेंट. तो ये क्रिएटिविटी का हिस्सा तो नहीं हो सकता. ये तो बायोलॉजिकल होता ना कि एक सनलाइट के रेज से अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उस केमिकल चेंजेस से बॉडी को एडॉप्ट करने के लिए फिर इन्वायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है और वो सिखा देती है, जिसको हम अपनी भाषा में शायद क्रिएटिविटी करना उचित नहीं होगा. हम क्रिएटिविटी की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. पहला हमने जो 2 एग्जाम्पल दिए उसको हम बोलते हैं फिलॉसफी. क्या बोलते हैं? दर्शन, है ना. दर्शन पहले लोगों ने समझा, अपनी भावनाओं को वैलिडेट किया, 3-4-10 हजार ऑब्जर्वेशन के बाद वो फिर कॉमन पब्लिक के बीच लेके आए. कॉमन पब्लिक के बीच लेकर के आए, जिससे क्या हुआ? एक ज्ञान की परंपरा बनी. इंडिविजुअल का ऑब्जर्वेशन सोसाइटी में फिर जनरेशन में, जनरेशन से जनरेशन. तो फिलॉसफी देखिए कैसे, दर्शन कैसे बिल्कुल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैल रहा है. तो क्या ये क्रिएटिविटी की शुरुआत है? क्या यहाँ से शायद कह सकते हैं क्रिएटिविटी की शुरुआत यहीं से है, फिलॉसफी से, दर्शन से. उस दर्शन की पराकाष्ठा इस भारत देश में कहाँ तक पहुंची?
जब हम त्रेता युग की बात करते हैं, जहाँ पे भगवान राम अवतरित हुए थे, त्रेता में ही अवतरित हुए थे ना, तो उस अवतरण में ठीक उसके पहले राजा अज, उनके पुत्र राजा दशरथ, कहा जाता था, जैसा पुराणों और अपने धार्मिक किताबों में लिखी हुई है, कि इंद्र से युद्ध किया करते थे। सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? तो इंद्र के युद्ध, जो इंद्र को बोला जाता था स्वर्ग का राजा, और कहीं राजा दशरथ इस धरती पे राज करते थे, भारतवर्ष में राज करते थे, और वो धरती से स्वर्ग पे लड़ाई लड़ते थे। एक जनरेशन और एक युग के आगे और जाते हैं, हम आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में कौन पैदा हुआ था, किसने जन्म लिया था? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए। अब देखो लेवल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इवॉल्व फ्रॉम द द्वापर युग एंड फॉरवर्डिंग टू द त्रेता युग, जहां पे उन्होंने हथियार नहीं उठाए लेकिन लड़ाइयां सारी कराई, पूरी महाभारत करा डाली। ठीक है, कहां से सोच आया सोचने का? इसका मतलब जब पिक्चर को, तस्वीर को आप देखेंगे तो वो क्रिएटिविटी जैसे शब्द, रचनात्मक जैसे शब्द, और जिसे बोलते हैं आप, क्या बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं उसको, सृजनात्मक जैसे शब्द, ये दोनों शब्द में बड़ा अंतर है, थोड़ा इस पे भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। रचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले ये नहीं देखा कि ये विज्ञान का विषय है, कि ये अर्थशास्त्र का विषय है, ये समाजशास्त्र का विषय है, ये राजनीति शास्त्र का विषय है, ये कूटनीति शास्त्र का विषय है, ये खगोल शास्त्र का विषय है, ये भूगोल का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे क्रिएटिविटी नर्चर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर होती है, वो विषय नहीं देखता कि किस दिशा में उसका क्रिएटिविटी नर्चर हुआ है। यही वजह है कि जब इंद्र से लड़ाई स्वर्ग से मृत्यु लोक तक होती थी, उसके आगे बिना हथियार उठाए दिमाग से लड़ाई महाभारत करा सकती है। उसका परिणाम क्या हुआ, हम परिणाम पे भी नहीं आते हैं, क्योंकि परिणाम आगे, परिणाम को हम जोड़ेंगे तो इनोवेशन में आ जाएंगे भी, है ना। तो वहाँ से चीज़ें डेवलप होते होते इस बात पे आके रुकती है कि आप सोच शुरू कहाँ से करें। अभी जैसे प्रोफेसर साहिन ने बताया कि थिंकिंग डिफरेंटली, शायद क्रिएटिविटी के लिए सूत्रपात का कार्यक्रम, सूत्रपात कर सकता है ये कि आप अलग तरीके से सोचें, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो अलग तरीके का सोच आएगा कहाँ से, अलग तरीके का सोच होता कैसा है, अलग तरीके की सोच की शुरुआत कहाँ से करें। शायद ये बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है। हमें लगता है कि पीछे के ऑडियंस मेरी बात पे ध्यान दे रहे होंगे, बड़ी काम का विषय है ये आपके लिए, बीइंग स्टूडेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है कहाँ से इसको सोचें। तो एक एग्जांपल देता हूँ, एक 30 सेकंड के लिए आप मौन स्थिति में चले आइए, जरा अपने सांसों को ध्यान से सोचिए 30 सेकंड के लिए केवल। अब जो सांस ले रहे हैं बस आप केवल उसको देखिए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। 30 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए ओपन। अब मैं किसी एक को खड़ा करूंगा, वो बताएगा अनुभव इस 30 सेकेंड का। बात शायद आपको समझ में आ गई हम क्या बोलना चाहते हैं, कि जब किसी भी चीज को डिफरेंटली सोचना है तो उसके लिए एक तरीका है, एक ही तरीका है और एक ही तरीका है। उस तरीके को ध्यान में रखना होगा। क्या होगा, आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करिए, एनर्जी के बहाव को रोकिए और कम से कम खर्च करने की कोशिश करिए, और खर्च उस दिशा में करिए जहां से कुछ आउटकम निकलना है। दो बातें हमने बोली कि एक तो ऊर्जा के बहाव को, व्यर्थ ऊर्जा के बहाव को रोकिए, दूसरा क्या है, उस बहाव को चैनलाइज करिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के लिए। तो ये अब इस प्रश्न का जवाब शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि क्रिएटिविटी शुरू कहां से करें। दूसरी चीज ये है, अभी हमने 30 सेकंड का जो टाइम दिया, कि आप अपने सांसों को जरा देखें तो आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि आप सांस जब पहले लेना शुरू करते हैं तो पहले वो चेस्ट में भरता होगा, थोड़ी देर फील करते होंगे तो हर ऑर्गन्स के अंदर उसकी ऊर्जा महसूस होती है, फिर आप उसको जब छोड़ते हैं तो उस समय कुछ वो बाहर निकलता है। जब अंतिम में बिल्कुल शरीर से पूरी सांस बाहर निकल जाती है तो कहीं न कहीं लगता है आपको रेस्टलेसनेस की पोजीशन, अगेन यू स्टार्ट रीइनहेलिंग। उसी के साथ साथ एक साउंड आता है, उस साउंड को भी महसूस करते हैं। तो शायद वो भी अभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब आप सांस ले रहे होते हैं कैसी आवाज़ है, कुछ घंटे की जैसी आवाज़ है, कुछ बंसी जैसी आवाज़ है, लेकिन जब आप उसको छोड़ रहे होते हैं तो ओंकार जैसी आवाज़ निकले, काइंड ऑफ।
ये एक एडिशनल है। आप सोचेंगे एक बार, सांस को ढंग से 30 सेकंड के लिए फिर से फोकस करेंगे और इसको लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को देखेंगे तो यहां से चीज आपकी निकल के क्या आती है? फोकस। क्या निकल के आता है? फोकस। बात समझ में आती है? जब फोकस किसी भी विषय पे होता है तो वहां से क्या है कि बहुत सारे और विषय निकलते हैं। जब और विषय निकलते हैं तो उसमें कुछ काम के विषय दिखते हैं। जब काम के विषय दिखते हैं उस पर आप और डीपर सोचना शुरू करते हैं। ये क्रिएटिविटी का बहाव है, ठीक है ना? जब इस क्रिएटिविटी को आप दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टिव यूज आम आदमी के लिए मिले, तब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इन सब विषयों की। व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर लर्निंग, व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर बीइंग टॉट, व्हाट डिग्री यू आर अर्निंग, व्हाट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू यू। वो सारी की सारी चीज़ें ये सांसारिक विषयों के लिए डेवलप होती है। इसका मतलब कि पहले आपको अपने अंदर से चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, जहाँ से क्रिएटिविटी इवॉल्व होती है। फिर उस क्रिएटिविटी को कहाँ अप्लाई करेंगे? फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स। बेनिफिट ऑफ द अदर्स मतलब आपका पहला पर्सपेक्टिव आता है फैमिली, फिर आता है सोसाइटी, फिर आता है नेशन, एंड फिर आता है होल ग्लोब, वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी, जो हिंदुस्तान की इंडियन नॉलेज सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट है। बात समझ में आ गई हुई? शायद इसीलिए हमने इस टॉपिक को ले रखा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर्सपेक्टिव फॉर द क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन। अभी तक की तो भूमिका रही। अब हम थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देख लें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बेसिस पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इवॉल्व किया जा सकता है। तो अभी प्रोफेसर शाहीन ने अगेन मेंशन किया, माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिया, टेस्ला का नाम लिया होगा, या शायद मन में रहा होगा नहीं ले पाए, या कुछ और भी ऐसे इंक्यूबेटर्स और इनोवेटर्स हैं जो हिंदुस्तान के बाहर से बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। बात समझ में आती है ना? ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है हिंदुस्तान के ब्रेन्स में नहीं है क्या? सवाल ये लैक कहाँ है? और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, माइक्रोसॉफ्ट पर्टिकुलरली यूएस में ही क्यों डेवलप हुआ है, इंडिया में क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्वेश्चन इज दिस एंड इट इज वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। इंडियन इनक्यूबेटर्स, इंडियन इनोवेटर्स, इंडियन क्रिएटर्स अपने प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करके यूएस में क्यों नहीं लेके गए? या फिर अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखें आप तो उनका परसेंटेज ज़्यादा क्यों, हमारा परसेंटेज कम क्यों है व्यापारिक लेवल पे, जहाँ पे इनोवेटिव प्रोडक्ट को बाजार में बेचने की बात होती है? चाइना बहुत आगे क्यों है? इसका मतलब उनकी प्राइमरली whenever we are talking about the creativity, we must definitely think the culture of the nation. We must definitely think the culture of the nation. तो कल्चर दो चीज़ों को प्रमोट करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को नेक्स्ट जनरेशन में ले आता है, लेकिन वहीं पर सबसे गंदा काम क्या होता है कि सोचने की क्षमता को भी वो डिटोरिएट कर देता है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी मिल रहा होता है। शुद्ध पानी किसी को मिल रहा होगा तो वो आरओ क्यों लगाएगा, है ना? जब आरओ पानी दूषित होगा तो शायद आरओ जैसे पानी को डेवलप करने की जरूरत पड़े, आरओ के पानी को क्लीन करने के लिए मशीन को बनाने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो मेरा सिंपल सबमिशन ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में हर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सस्टेनेबिलिटी के एंगल से बहुत ही एक्सेप्टेबल थी, चाहे इनका मकान, चाहे खाना पीना, चाहे मेडिकल साइंस, चाहे एस्ट्रोलॉजी, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे फिजिक्स, चाहे आप इकोनॉमिक्स, चाहे अर्थशास्त्र, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे समाज शास्त्र, कुछ भी आप देख लें, बहुत ही स्ट्रिंजेंट डिज़ाइन पे बना हुआ था, बहुत ही क्लियर कट रिपरकशन से, और जो इन्वायरमेंट से हमेशा कनेक्टेड थे। आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य का नाम सुना है ना? ये चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश का इस्टेब्लिशमेंट किया इन्होंने। इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार हुए, इसके बाद मौर्य वंश की भी स्थापना इन्हीं के समय हुई थी ना? तो उन्होंने एक मौर्य वंश की जब स्थापना किए तो एक बाहर से कोई अच्छा विद्वान आया, फिलोसोफर आया, से चाइना से आया, एग्जाम्पल के तौर पर, नाम नहीं लेना चाहता। वो आया हिंदुस्तान में तो वहाँ पे चाणक्य से मिला। जब चाणक्य से मिला तो चाणक्य ने अपने रात में अपनी ऑफिस में बैठे हुए उस फॉरेनर को इंटरटेन कर रहे थे। तो एक तो पहले अपनी व्यक्तिगत जब ऑफिशियल काम के लिए जब मीटिंग थी उससे, तो उन्होंने सरकारी मोमबत्ती जलाई। जब ऑफिशियल काम खत्म हो गया तो सरकारी मोमबत्ती को बंद करके उन्होंने व्यक्तिगत मोमबत्ती जलाई ताकि व्यक्तिगत चर्चा कर सके। दो बात समझ में आ गई। एथिक्स क्या है? एथिक्स नंबर 2 इसी में अब चर्चा करना चाहते हैं। चाणक्य ने उस फॉरेनर को एक ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया? उससे पहले ये उसका प्रश्न सुन लीजिए कि आपके राज्य में साम्राज्य का विस्तार, इतना सटीक विस्तार होता है लेकिन क्षति बहुत कम होती है। ये उस फॉरेनर का क्वेश्चन था। आपने 3 वंश की तीन जनरेशन तक आपने गुप्त वंश से मौर्य वंश तक की स्थापना करी,
तो ये शांति कैसे स्थापित करते हैं? तो चंद्रगुप्त, इनका जो चाणक्य जी का जवाब था कि शीतकाल में जितना श्वेत बहेगा, युद्ध काल में उतना ही कम रक्त बहेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट थे। सवाल में उनका जवाब फिर दोहराता हूं कि शीतकाल में जितना श्वेत बहेगा, मतलब बुद्धि चलेगी, युद्ध काल में उतना ही कम रक्त बहेगा। यही शायद गुप्त वंश और मौर्य वंश की स्थापना के पीछे बहुत बड़ा कारण है। और इसी ज्ञान से प्रेरित होने के बाद अशोक ने कलिंगा युद्ध के बाद युद्ध पे से सरेंडर कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना करके पूरे विश्व में उसको स्थापित करने की कोशिश करी, जिसमें कंप्लीट साउथ एशिया बुद्धिस्ट आज के दिन में। उस बुद्धिज्म के अंदर आप बताइए क्रिएटिविटी और इनोवेशन का क्या रोल है जो अशोक ने फॉलो किया। ये एक एग्जाम्पल है। हम किसी रिलीजियस अप्रोच से बात नहीं कर रहे, हम तो ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी में लोग क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होती थी, उसका आधार क्या था। तो हमने एक बताया सेल्फ डेवलपमेंट, जहाँ पे अपने अंदर की होने वाली चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करें, दुनिया समझ में आ जाएगी, नंबर 1। दूसरा क्या रहा? इन्वायरमेंट, है ना, कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके हम अपनी चीज़ों का विकास करने की कोशिश करें तो इर्द गिर्द का माहौल हमेशा खुशहाल बना रहेगा, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। बात समझ में आती है? इस बात से सब लोग सहमत है कि नहीं सहमत है?